हेलो गाइस। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसी की सीरीज में हम आज एक नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इमरजेंसी प्रोविजंस, राइट? फ्रॉम द बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस perspective, this provision is really important. Even also in interview also you may be have you might have been asked questions with respect to emergency provisions with respect to your opinion, right? So that is something very important we are going to discuss today, right? What we are going to discuss, I just want to give you some brief introduction about it. Let's see. Like 1 minute, 1 minute. Okay. So yeah, here we are going to discuss three emergencies: rise, national emergency, then president rule, and third is financial emergency. Right? We are going to see all the provisions with respect to those emergencies, right? How they are implemented, what are those grounds, who implements them, उनका parliament approval कब होता है, etc. Right? So without wasting any time, and I am very much sure that it will be very time saving for you. If you directly jump into the Lakshmikant book and you are a beginner, then it would be very difficult for you to mug up to understand that book. Okay, and firstly, and the secondly, the most important, that is how you are going to recall those things. It will be very tough, but what I have done, I have only highlighted those parts, those things which are important for the films and the men's perspective. Okay, otherwise I have skipped almost yeah. So I think it will be very crisp, yeah. So let's start, right? So guys, सबसे पहले व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन से पार्ट में इमरजेंसी प्रोविजंस आते हैं, वो है पार्ट नंबर 18, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो इन प्रीलिम्स यूपीएससी प्रीलिम 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इमरजेंसी प्रोविजंस कौन से पार्ट में आते हैं. So what I had idea कि 18 part में आते हैं. Okay, then I have that statement was correct with this for me. But yeah, you have to remember कि भाई emergency provisions किस में आते हैं, that comes into 18th part. Okay, next what we need to understand कि कौन कौन से articles इसमें cover होते हैं, because emergency provisions are very significant from the federal perspective and for the the security and then sovereignty of the country. Okay, that's why these provisions are very very crucial in any democratic country, right, like India. So article 252 से लेके 260 तक, 252 to 260 तक जितने भी आर्टिकल्स आते हैं वो that are part of emergency provisions. Okay, तो पार्ट नंबर 18 एंड आर्टिकल्स कवर होते हैं 252 से लेके 262. ठीक है, अब आप बोलोगे सर इमरजेंसी प्रोविजंस की जरूरत क्या थी, क्या ही जरूरत थी इनको लाने की, राइट? सो देखो, बेसिक आइडिया क्या था कि इसके थ्रू जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं उसके थ्रू क्या कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एबनॉर्मल एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन से मीट कर सकता है इजीली. ठीक है, उसको कोप अप कर सकता है. दैट वाज बेसिक आइडिया. एंड फर्दर द रेशनल बिहाइंड की एबनॉर्मल सिचुएशन से कोप अप क्यों करना है आपको, दैट वाज रीजन कि भाई हमें ना अपनी सोवरेनिटी को, ठीक है, सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को सिक्योर करके रखना है. वो कभी पॉसिबल होगा जब हम ऐसे प्रोविजंस लाएंगे, ठीक है, ताकि so that central government has that capability to cope up with such abnormal situations, right? That's why these provisions have been inserted and the constitution itself. Okay, there was a lot of criticism of these provisions. We will going to see later all those things, but yeah, initially I want to make sure that these things you have to keep in the mind, keep which part, like in which these provisions have been contained. That was part 18, article number 352 to 60, 3060. Okay, why, what the reason? To enable central government to cope up any abnormal or extraordinary situations, right? And rationale behind that, what was the need to safeguard the country, to ensure the security of the country. That was the basic idea. Okay, next what we are going to see. हाँ, अब देखो what is going to happen जैसे इमरजेंसी प्रोविजंस इनफोर्सेबल ऑपरेट हो गई, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, what was the effect, what will be the effect of those provisions. Okay, so उसका प्रोविजन, इसका इफेक्ट ये होगा कि उसके बाद जैसे दिस इमरजेंसी प्रोविजंस गेट्स इफेक्टिव,
द सेंट्रल गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट बिकम्स ऑल पावरफुल, उसके पास सारी पावर्स आ जाती है, द स्टेट गो इनटू टोटल कंट्रोल ऑफ द स्टेट, एज सिंपल एज दैट, राइट? So what is going to happen here? देखो, already we have discussed in the federal system chapter, okay, कि we are not the ideal federal country, but we have most of the features of the federalism, right? So, but in this case, as soon as emergency provisions gets effective, our federal system gets converted into unit itself. You will be surprised, and it's a unique feature. देखो क्या होता है नॉर्मल टाइम्स में, क्या होता है जनरली, अभी चल रहा है, जैसे अभी कोई इमरजेंसी नहीं है किसी भी स्टेट में, नहीं है, नहीं नेशनल इमरजेंसी, नहीं फाइनेंशियल इमरजेंसी, राइट? सो हमारा इंडिया फेडरल के तरह काम कर रहा है, बट एज सुन एज इमरजेंसी गेट्स इफेक्टिव, आवर कंट्री विल गेट इनटू यूनिटरी सिस्टम लाइक ब्रिटेन, ओके? द सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सारी पावर्स आ जाएगी, और ये पावर्स ट्रांसफर कौन कर रहा है स्टेट से सेंटर को? दैट्स इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन itself, राइट? तो दैट इज यूनिक फीचर। अब हम देखो, हमने ये देख लिया, ये को हमारे काम का नहीं है, राइट? वी कैन स्किप इट। व्हाट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर अस कि कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप्स की इमरजेंसीज को मेंशन किया गया है, ठीक है? दैट इज व्हाट वी आर नीड टू रिक्वायर टू अंडरस्टैंड, टू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, राइट? सो सब फर्स्ट इमरजेंसी जिसे अपन नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं। नेशनल इमरजेंसी से क्यों बोलते हैं? दैट इज द रीजन कि यह पूरे कंट्री में ये लागू होती है, राइट? पूरे कंट्री जो है ना उसमें ये अप्लाई होती है। वो लागू कैसे होगी, उसका इफेक्टिव कैसे होगा, उसका रीजन 3 रीजन है उसके। एक तो हो वॉर स्टार्ट, किसी कंट्री के साथ वॉर हो जाए, एक हो जाए एक्सटर्नल अग्रेशन किसी कंट्री का हमारे ऊपर, थर्ड आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन मतलब या तो पब्लिक, यहाँ की इंडिया की पब्लिक क्या करे, मतलब जो आर्म्स वगैरह लेके गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ी हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट खड़ी हो जाए, या इवन द आर्म्ड फोर्सेस go against like the government itself, then these are the grounds, ठीक है? थ्रू उन ग्राउंड्स पे आप क्या प्रेसिडेंट हमारे क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो 3 ग्राउंड्स थे, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। अब आप बोलोगे सर कि वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन में क्या डिफरेंस है, ये तो दोनों सिमिलर साउंड कर रहे हैं। No, there is little technical difference between war and external aggression. War क्या होता है? War in general, war में क्या होता है? जिस कंट्री के साथ वॉर होता है वो जनरली क्या करती है, पहले बता देती है कि वी आर गोइंग टू हैव अ वॉर फ्रॉम दिस, वी आर गोइंग टू हैव अटैक ऑन योर टेरिटरी, राइट? वी आर गोइंग टू एंटर इन योर टेरिटरी। तो वो पहले नोटिस जारी कर देती है, बता देती है ओपनली, राइट? सेकेंड है एक्सटर्नल अग्रेशन में ऐसा नहीं होता। एक्सटर्नल अग्रेशन में विदाउट नोटिस, विदाउट टेलिंग दैट वी आर गोइंग टू अटैक, द अटैक, राइट? जैसे हमारे जो चाइना के साथ वॉर हुए हैं, जो पाकिस्तान के साथ 2-3 वॉर हुए हैं, उन सब में एक्सटर्नल अग्रेशन हुआ है, वॉर कभी नहीं हुआ आज तक, ठीक है? कीप दिस इन द माइंड। और ये बोल सकते हैं ये डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है, राइट? और हो गया आर्म्ड रिबेलियन, मैंने पहले ही बता दिया आपको, राइट? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हाँ, एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है? 1 मिनट। देखो, एक चीज यहाँ पे आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसको नेशनल इमरजेंसी नहीं बोलता है। लेट मी हाईलाइट फॉर यू। देखो, हम इसको जनरली नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या वर्ड यूज करता है? प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ना कि देखो, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से वर्ड्स यूज किए गए हैं। जैसे अपन यूनियन एंड आई थिंक फेडरलिज्म के भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, यूनियन एंड टेरिटरी के चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि फेडरेशन वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कभी यूज हुआ ही नहीं है। ऐसे ही सिमिलरली व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन इमरजेंसी को लेकर कौन कौन से वर्डिंग यूज हुई है, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? सो प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी बोला, इसको नेशनल इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बोला, हमने बोला इसको पॉपुलर इट्स नोन एज नेशनल इमरजेंसी, बट कॉन्स्टिट्यूशन हैज यूज्ड द वर्ड, द एक्सप्रेशन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, सिंपल। अब जो नेक्स्ट इमरजेंसी है वो है जिसे अपन स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं पॉपुलरली, क्वेश्चन इमरजेंसी भी बोल देते हैं, और प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं पॉपुलरली, ठीक है? वो कब होता है?
वो इन्फोर्सेबल होता है जब कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी किसी स्टेट में फेल हो जाए। मतलब आप बोलोगे कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का मतलब क्या है सर, बताइए फेल कैसे होगी? फेल इन द सेंस कि when any state government is not uh, able to run its administration governance as per the provisions of the constitution, then it's completely failure of the constitutional machinery, right? That is meaning of the word constitutional machinery. So as soon as any state gets into this trouble, जैसे अभी मणिपुर में क्या हुआ था, देखो स्टेट का काम क्या है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, राइट? It is constitutional obligation. Law and order comes in the state list subject, right? And it is the duty of the state, ठीक है, to maintain law and order. But the ethnic violence that is prevailing, that is still widespread there in the state of Manipur. So central government had that discretion, okay, to declare a president rule in Manipur, but due to politics, it was not that much possible because the government that is running the Manipur is the alliance of the ND government, right? That is in the power in the central level. That's why there is some politics. But if there would have been the opposition party that would have been ruling that Manipur, then I was very sure. I'm very sure still that president would have been declared. So very very early, right? तो ऐसा केस है, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, इम्पोर्टेंट देखो, जो रेड से जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, ये आपके लिए क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो येलो से आपको ये पढ़ना है। देखो तीन मार्क्स का यूज करने वाला हूँ आपके लिए, हमारे लिए यहाँ पे। एक तो आई वुड यूज येलो, ठीक है, जो कि जनरल आपको पढ़ना है, उसको बेसिक समझना है, उसको वो मैं समझा भी रहा हूँ साथ में। प्लस जो मैं ब्राउनिश यूज कर रहा हूँ वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मतलब थोड़े क्या काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते, उसको 3-4 बार पढ़ना है। और जो मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूँ ना, एक्सेप्शंस यूज कर रहा हूँ रेट से जनरली, ठीक है, ये ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जो फिल्म्स में क्वेश्चन बन सकते हैं वहां से यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो 3 टाइप से मार्कर से आपको समझना चाहिए इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्रेसिडेंट जो आर्टिकल, हाँ एक चीज मैं आपको बताने भूल गया हूँ, 1 मिनट। देखो नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल किसके अंडर आती है? आर्टिकल 252 के अंडर आती है, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट रूल है, जो स्टेट इमरजेंसी वो आती है आर्टिकल 356 के अंडर, ठीक है। और प्रेसिडेंट रूल या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, जिसे भी आप कुछ भी जिसे बोल दो आप, ठीक है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी वर्ड यूज नहीं किया है, बस आपको याद ही रखना है। देखो नेशनल इमरजेंसी के लिए उन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, और इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी के लिए उन्होंने बोला कि कोई वर्ड इमरजेंसी जैसा कुछ यूज ही नहीं किया। मतलब इन द आईज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 इज नॉट एन इमरजेंसी एक्चुअली, ओके, सो दैट इज द मीनिंग। नेक्स्ट जो है हमारे लिए दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब बोलो फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है सर? फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब फाइनेंस से रिलेटेड चीजें सही नहीं चल रही जब, ठीक है, तब उसको फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं। कब होगा? जब हमारे कंट्री की फाइनेंस स्टेबिलिटी और उसके क्रेडिट पे क्या आ जाए, थ्रेट आ जाए, इन डेंजर हो जाए वो, दैट प्रेसिडेंट इज empowered टू डिक्लेयर एट सच टाइम्स फाइनेंशियल इमरजेंसी। बट वी आर वेरी लकी दैट we have no such situation till now. Okay, there was financial crisis in 1991 1922, okay, but yeah, we never had financial emergency till now. So financial emergency comes under article 360. Next, अब देखो हम क्या करने वाले हैं, नेशनल इमरजेंसी को डिटेल में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। हमने ऊपर इसका बेसिक आइडिया देख लिया तीनों इमरजेंसीज का, कि कौन कौन से ग्राउंड से आर्टिकल्स कौन से, उनको क्यों क्या बुलाया जाता है, पॉपुलर उनको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या उसको वर्ड यूज हुआ है, हमने देख लिया। नेक्स्ट अपन यही पढ़ेंगे नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, कि नेशनल इमरजेंसी क्या है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी हमने देख लिया, आर्टिकल कौन सा है, 352 है, राइट। और अब एम्पावर्ड कौन है? प्रेसिडेंट कभी भी डिक्लेयर कर सकते हैं। आर्टिकल 352 प्रेसिडेंट को पावर देता है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने का। कब करेंगे? जब वॉर होगा, या तो किसी कंट्री के साथ हमारा, या एक्सटर्नल अग्रेशन करेगी कोई कंट्री हमारे ऊपर, और ये आर्म्ड रिबेलियन होगा। 3 ग्राउंड से वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन प्रेसिडेंट को पावर दी गई है अंडर आर्टिकल 252 कि ही कैन डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। नेक्स्ट
जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ से। देखो, इमरजेंसी 3 ग्राउंड पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है, एक तो वॉर पे किया जाता है, एक आर्म रिबेलियन पे। देखो, जब वॉर और एक्शन अग्रेशन पे कोई इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलते हैं, ठीक है। जबकि एनी इमरजेंसी दैट इज डिक्लेयर ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म रिबेलियन, दैट इमरजेंसी इज नोन एज इंटरनल इमरजेंसी। कीप दिस थिंग इन माइंड, ओके। सो जब भी कोई इमरजेंसी एक्सटर्नल अग्रेशन और वॉर पे डिक्लेयर होगी, दैट इज विल नोन एज एक्सटर्नल इमरजेंसी। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है कि जब हम इसके इफेक्ट्स देखेंगे, इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, देन वी आर गोइंग टू सी कि कुछ फंडामेंटल राइट्स दे आर ओनली क्या बोलते हैं, सस्पेंडेड इन एक्सटर्नल इमरजेंसी ओनली, नॉट इन इंटरनल इमरजेंसी। सो जब आर्म रिबेलियन पे के बेस पे जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होगी तो उसे बोलेंगे इंटरनल इमरजेंसी, वॉर एक्सटर्नल पे एक्सटर्नल इमरजेंसी। नेक्स्ट, और देखो हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम ये जाने कि पहले प्रोविजंस, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी क्या प्रोविजंस थे, उसके बाद क्या क्या अमेंडमेंट किए गए थे। उसी सीरीज में अर्लियर देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या वर्ड यूज किया था, आर्म रिबेलियन की जगह यूज किया था इंटरनल डिफरेंस, इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है, ये वर्ड यूज किया था, ठीक है। ओरिजिनली तो यही था, बट ये देखो वर्ड कितना वेग है। देयर इज नो इंटरनल डिस्टर्बेंस, कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका मीनिंग आप कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। इवन कोई प्रोटेस्ट कर रहा है पीसफुली, देन ऑल्सो यू कैन सी कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन इट, राइट। सो इसका जब इस वर्ड का जब मिसयूज हुआ था, ठीक है, कब मिसयूज हुआ इसका, इन 1975 में, जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट ने क्या किया, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। सो without the recommending, without the concurrence of cabinet, he single-handedly declared and you can say advised the president, then president, to declare the national emergency because there was widespread protest by the JP and Morarji Desai, ठीक है, especially in Gujarat, Bihar, in those states, UP, etc. Right? That's why as soon as the the Janata government headed by Morarji Desai जब पावर में आई तो उन्होंने 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया। कौन सा अमेंडमेंट लाया? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, ठीक है। तो उन्होंने आर्म्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को यूज उसको रिप्लेस कर दिया आर्म्ड रिबेलियन वर्ड से, बस आप याद रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ ही आर्टिकल जो आपका क्या बोलते हैं, इसके साथ ही जब देखो मैंने क्या बोला, जब इंदिरा गांधी जी को लगा कि मेरी गवर्नमेंट पे खतरा है, ठीक है, व्हाटएवर। सो व्हाट हैपेंड एक्चुअली, तो मैंने क्या बोला कि इंदिरा गांधी जी ने क्या बोला प्रेसिडेंट साहब को कि आप है ना नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करिए, ठीक है। उन्होंने सिंगल हेडली एडवाइस दे दी उनको, और उन्होंने प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया। इवन ये भी बोलते हैं कुछ लोग, देयर आर सम मिथ्स, आई डोंट नो, आई एम नॉट one who is going to verify, but कि उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो आपके जो संजय गांधी थे, द एल्डर सन ऑफ इंदिरा गांधी, उन्होंने क्या किया, ब्लैंक पेज लिया, उस पे इनके आपके साइन करवाए इंदिरा गांधी जी के, ठीक है, और उन पे खुद ने साइन करवा के उस पर प्रिंट कर दिया इमरजेंसी का, और प्रेसिडेंट जो थे उनको ये जाके दे दिया कि मॉम ने बोला है कि आप नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करिए। सो ऐसा भी कुछ ये रूमर से वो क्या बोलते हैं कुछ, ठीक है। तो अब क्या हुआ, कैबिनेट की उन्होंने सुनी नहीं, मतलब कैबिनेट से डिस्कस भी नहीं किया और सीधा बोल दिया, ठीक है। अब क्या 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या बोला कि 44th में बोल दिया कि कोई प्रेसिडेंट तभी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करेगा जब रिटर्न रिकमेंडेशन होगी, रिटर्न रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट, मतलब कैबिनेट के सारे जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो प्रेसिडेंट को रिटर्न में अपने सिग्नेचर लिखेंगे, उसमें ये बोलेंगे कि आप प्रेसिडेंट साहब क्या करिए, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करिए, ठीक है, तभी प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आप आज करंटली अगर पीएम नरेंद्र मोदी बोले जो द्रौपदी मुर्मू हमारी प्रेसिडेंट है उनसे कि आप नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करिए, तो शी विल नॉट गोइंग टू डिक्लेयर, ठीक है, अनलेस अंटिल the whole cabinet gives written recommendation for that,
ठीक है। इसी प्रकार मैंने बोल दिया 1975 में इंदिरा गांधी जी ने क्या क्या हुई है उनको बोल दिया, तो उसको चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो एक चीज ये बना दिया, इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आ गए 1975 में और बोल दिया नेशनल इमरजेंसी क्या है, जुडिशियल रिव्यू से क्या कर दी, इम्यून कर दी, मतलब इस पे कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं लिया जा सकता, ठीक है। बट मेरिना मिल्स और ये प्रोविजंस आर्टिकल 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से डिलीट किया गया है। मेरिना मिल्स जो केस था 1980 में, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि नेशनल इमरजेंसी को चैलेंज किया जा सकता है, कौन सा ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड ऑफ मेलाफाइड, ठीक है, कौन से ग्राउंड पे, मेलाफाइड, अगर मतलब अगर आपके इंटेंशंस बुरे हैं, ठीक है, तब आप उसको आप बोल सकते हो कोर्ट में जाके उसको चैलेंज कर सकते हो, सिंपल इज दैट, राइट। मेरा केस थोड़ा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा ध्यान से। अब हमने ये देख लिया कि कौन कौन सा ग्राउंड है, ठीक है, प्रेसिडेंट कैसे उसको डिक्लेयर करेंगे। अब प्रेसिडेंट एज सोन एज प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया, अब प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, अब इनको इमरजेंसी को क्या करना पड़ेगा, आपको पार्लियामेंट से अप्रूव करवाना पड़ेगा, ठीक है। वो कब करवाना है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो वो जैसे वो आपका क्या हो गया, प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दी नेक्स्ट इमरजेंसी, उसके एक महीने के अंदर अंदर ही पार्लियामेंट के दोनों हाउस से क्या करना पड़ेगा आपको, उसको क्या करवाना है, आपको अप्रूव करवाना पड़ेगा, ठीक है। देखो ओरिजिनली 44 जो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 2 महीने था कि 2 महीने के अंदर आपको करवाना है इसको, ठीक है, अप्रूव, बट 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और ज्यादा स्ट्रेटेजी प्रोवाइड कर दिए, आप इसको 1 महीने के अंदर करवाना है, ठीक है। अब जैसे ही पास कर दी इमरजेंसी दोनों, अब देखो एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ से कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपल मेजोरिटी से आपको पास करवाना था इसको, ठीक है। मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में बोला कि आप अगर आप प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दी इमरजेंसी, उसके बाद आप दोनों हाउस से सिंगल मेजोरिटी से पास करवा सकते हो, ठीक है। बट 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने ये प्रोविजन कर दिया कि 1 महीने के अंदर करवाना है, 2 महीने का 1 महीने कर दिया, प्लस सिंपल मेजोरिटी को स्पेशल मेजोरिटी में बदल दिया कि अब आपको स्पेशल मेजोरिटी से दोनों हाउस ऑफ द पीपल एंड हाउस ऑफ स्टेट्स जो है उसे दोनों से पास करवाना पड़ेगा आपको स्पेशल मेजोरिटी के साथ। अब देखो जैसे एक बार पास कर दिया, वो इमरजेंसी चलती 6 महीने तक, कितने चलती है, 6 महीने तक चलती है, और ऐसी एवरी 6 महीने आप अप्रूव करते जाओ, इसको अप्रूव करते जाओ, और आप इंडिपेंडेंट पीरियड तक मतलब कितने भी साल तक इसको चला सकते हो, खींच सकते हो इमरजेंसी को, बट आपको 6 महीने में इसको अप्रूव करता जाना है स्पेशल मेजोरिटी के साथ। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो मैंने क्या बोला, अभी स्पेशल मेजोरिटी का प्रोविजन कर दिया है, पहले क्या था, सिंपल मेजोरिटी थी, तो यही सिंपल है, आपको स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास करवाना। अब देखो दोनों ने पास कर दिया, दोनों हाउस ने पास कर दिया, तो अब 6 महीने के बाद पास करते जाएंगे और कितने भी टाइम तक आगे बढ़ा सकते हैं इसको। अब इसको रिवोक कैसे करेंगे, मतलब इमरजेंसी को हटाएंगे कैसे, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना भाई, आपने उसको लगा दी उसके बाद हटाना भी पड़ेगा कभी। तो रिवोकन की पावर क्या है कि प्रेसिडेंट कभी भी उसको रिवोक कर सकते हैं, पहला तो ये है प्रेसिडेंट रिवोक एट एनी टाइम, ठीक है। बट उसके लिए पार्लियामेंट्री डजंट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल, मतलब इसके लिए आपको है ना प्रेसिडेंट एनी टाइम उसको डिसअप्रूव कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि आज से इमरजेंसी खत्म होती है। इसके साथ ही अगर लोकसभा क्या कर दे, रेजोल्यूशन पास कर दे, क्या कर दे, रेजोल्यूशन पास कर दे इसको डिसकंटिन्यूएशन का, तो लोकसभा को जो प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, उनकी रिकमेंडेशन माननी पड़ेगी। देखो ये भी प्रोविजन क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट तो कर सकते, सपोज करो कि प्रेसिडेंट अपना मतलब वो कर ले, मनमानी कर ले इसमें, तो उन मनमानी को रोकने के लिए लोकसभा ने रेजोल्यूशन पास किया है, हालांकि प्रोविजन किया गया 44th अमेंडमेंट के थ्रू अगेन, कि लोकसभा ने जब रेजोल्यूशन पास कर दिया इसका डिसकंटिन्यूएशन का, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास कोई चॉइस नहीं होगी एक्सेप्ट रिवोकेशन ऑफ वो जो बोलता है इमरजेंसी, ठीक है। अब हमने ये देख लिया रिवोकेशन कैसे होगा। नेक्स्ट हमारा जो अब ध्यान होगा वो होगा कि इसका इफेक्ट क्या होगा, सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे इफेक्ट क्या होगा, लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पे क्या होगा, और फंडामेंटल राइट्स पे क्या होगा। तो देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में क्या डिफरेंस है, केवल क्या इफेक्ट आने वाला है, तो वो एक्चुअली बेसिक उसका पूरा चेंज हो जाता है। एक्चुअली मैं आप बोल दूं नेशनल इमरजेंसी के बाद
सेंट्रल स्टेट सब कुछ पावरफुल बन जाती है और एक तरह से एक यूनिटरी सिस्टम बन जाता है हमारे यहाँ पे। देखो यूनिटरी सिस्टम फेडरल सिस्टम यूनिटरी में कन्वर्ट होता है। अब देखो सबसे पहला जो इफेक्ट पड़ेगा एग्जीक्यूटिव पे पड़ेगा, ठीक है, फिर लेजिस्लेटिव रिलेशन पे अपन देखें वन बाय वन। अब एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है कि अब सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर इतनी ज्यादा हो गई है कि वो कोई भी डायरेक्शन स्टेट को दे सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन एग्जीक्यूटिव फील्ड में, ठीक है, कि आपको कैसे काम करना है वो डायरेक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट लेजिस्लेटिव रिलेशन में, हाँ वही है मैंने बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट कंप्लीट कंट्रोल के अंदर आती है, ठीक है, वो सस्पेंड नहीं होती, बस ये याद रखना है, मतलब कंटिन्यू रहती है बट उनके पावर्स को छीन लिया जाता है। नेक्स्ट अब लेजिस्लेटिव फील्ड में क्या होता है, नेक्स्ट इमरजेंसी टाइम पार्लियामेंट किसी भी स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है, सिंपल एज दैट। ये आपको याद रखना है कि पार्लियामेंट जब इमरजेंसी इन्फोर्सेबल होती है, इन ऑपरेशन में होती है, तो क्या होता है लिस्ट पार्लियामेंट बिकम्स ऑल पावरफुल टू इनेक्ट एनी लॉ इन द स्टेट लिस्ट। और हाँ ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए, इसको मैं रेड से हाईलाइट कर देता हूँ। अब पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, ठीक है, लॉ बनाया, ठीक है, बनाया लॉ। अब जैसे ही लॉ बनाया इमरजेंसी खत्म हो गई, उसके 6 महीने बाद वो लॉ क्या होता है रिपील हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है, बस आपको याद रखना है, सिंपल। स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बनाया, पार्लियामेंट को पावर दे दी इमरजेंसी ने तो, ठीक है, बट जो लॉ बनाए स्टेट लिस्ट पे तो वो 6 महीने के बाद, जब इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने बाद अपने आप ही वो लॉ खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और फाइनेंशियल फील्ड में क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो फाइनेंशियल फील्ड में ये इफेक्ट पड़ेगा कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये बता रखा है ना कि कितना रेवेन्यू शेयर होगा सेंट्रल स्टेट के बीच, ठीक है, उसको या तो कम कर सकता है, उसको कैंसिल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। मतलब फाइनेंस की भी पावर किसके अंडर आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ जाता है सब कुछ, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन है रेवेन्यूज का सेंट्रल स्टेट के बीच में, उसको कंप्लीटली मॉडिफाई कर सकते हैं प्रेसिडेंट साहब। ये सिंपल एज दैट, बस आपको याद ही रखना है, ठीक है, इतना इस चीज को याद रखना है, बाकी आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक। हाँ यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, बोलना नहीं। अभी कोई मॉडिफिकेशन बनाए है ना, मतलब उन्होंने बोल दिया, सपोज करो कि उसमें प्रोक्लेमेशन ये बता दिया, ये कोई डायरेक्शन भी दे दिया कि यूपी को कोई मतलब यूपी का जो टैक्स कट है, जो रेवेन्यू शेयर है, उसको अपन 10% कर देते हैं आज से उस इमरजेंसी में। तो जो 10% कर दिया ना, वो 10% ही रहेगा जब तक फाइनेंशियल ईयर वो खत्म नहीं हो जाता। आप बोलोगे सर फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होता है? देखो एक तो नॉर्मल ईयर जनवरी से शुरू होता है, फर्स्ट ऑफ जैन, और 31 दिसंबर का लास्ट डे होता है किसी भी नॉर्मल ईयर का, ठीक है, कैलेंडर ईयर जिसे बोलते हैं अपन। बट जो फाइनेंशियल ईयर्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, वो होते हैं आपके 1 अप्रैल से स्टार्ट होते हैं, 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक चलते हैं, ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो सपोज करो अगर 25 को उन्होंने बोल दिया, या मान लो 25 तो नहीं, अगर जुलाई में बोल दिया कि आज से मतलब आपके शेयर इतने कम, आपको इतने शेयर मिलेगा स्टेट रेवेन्यू सेंट्रल रेवेन्यू से, तो वो शेयर फिर 31 मार्च तक चलेगा, 1 अप्रैल से वो चेंज हो जाएगा, बस याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट चीज है वो इफेक्ट है किस पे, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, भाई उनके टेन्योर पे क्या डिफरेंस इफेक्ट पड़ेगा, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखो याद ये रखना है आपको कि लोकसभा है ना, उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप बढ़ा सकते हो एक लॉ के थ्रू। पार्लियामेंट का एक लॉ बनाना पड़ेगा आपको 1 ईयर एट ए टाइम, मतलब आपको पार्लियामेंट से पास करवाना है कि भाई देखो अभी इमरजेंसी चल रही है तो इलेक्शन लोकसभा का पॉसिबल है नहीं, तो इस लोकसभा को हम कंटिन्यू करने वाले हैं, तो एवरी ईयर आपको क्या करना पड़ेगा, पास करवाना पड़ेगा, ठीक है। ए सिंपल एज दैट कि एक साल आपने पास करो, अगले साल फिर से इमरजेंसी इन्फोर्सेबल है, तो कंटिन्यूस में आप कर सकते हो इंडिपेंडेंट टाइम के लिए। बट एक चीज आपको याद ये रखनी है यहाँ पे, क्या याद रखनी है कि जैसे इमरजेंसी खत्म होती है उसके 6 महीने बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इलेक्शंस करवानी पड़ेंगी, ठीक है। और देखो 1971 से 1975
77 जो था उसको 2 टाइम्स बढ़ाया गया था 1 ईयर टाइम, 2 साल इसके इलेक्शंस को एक्सटेंड कर दिया गया था जब नेशनल इमरजेंसी थी under Indira Gandhi government, and there was a lot of criticism, obviously, or should be criticism, right? If you misuse the powers of the constitution or your office, that is not something should be appreciated. Next, जो इफेक्ट पड़ने वाला वो है फंडामेंटल राइट्स पे। अब देखो फंडामेंटल राइट्स पे इफेक्ट पड़ने के लिए चीजें आ रही दो, यहाँ पे 2 आर्टिकल्स इसके लिए, आर्टिकल 358 एंड 359। 359 2 आर्टिकल्स इफेक्ट करेंगे। तो देखो आर्टिकल 19 है जिसमें देखो 6 एक्चुअली फ्रीडम्स दे रखी हैं। देखो उसमें से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, असेंबली, एसोसिएशन, ये सब कुछ ठीक है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, एसेट्रा एसेट्रा। सो आर्टिकल 358 क्या बोलता है? 358 क्या बोलता है कि जैसे इमरजेंसी डिक्लेयर होगी, जैसे इमरजेंसी डिक्लेयर होगी, ठीक है, आर्टिकल 352 क्या हो जाएगा? एक्टिव होगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली एक्टिव होगा। याद ये रखना है, इसमें कुछ अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है। आर्टिकल 19 के जो 6 फ्रीडम्स है, आपकी 6 फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 19 के अंदर, वो क्या हो जाएंगे? नेशनल इमरजेंसी के टाइम सस्पेंड हो जाएंगे। बट आपको याद ये रखना है, हाँ मैंने आपको बताया था इंटरनल इमरजेंसी और एक्शन इमरजेंसी ऊपर बताया था ना आपको, उसी वो भी उसका बताने का रीजन यहाँ पे था। आर्टिकल 19 तभी सस्पेंड होगा जब इमरजेंसी क्या हो? एक्सटर्नल हो, ना कि इंटरनल, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब इमरजेंसी वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन के ग्राउंड पे डिक्लेयर होगी तभी आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा, ठीक है। अगर आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड पे होगी तो आप आर्टिकल 19 को सस्पेंड नहीं कर सकते, ठीक है, आपको याद ये रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल 359 क्या बोलता है? देखो आर्टिकल 358 तो ऑटोमेटिकली बोलता है, ऑटोमेटिकली बोलता है कि प्रेसिडेंट उसको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ही 19 आर्टिकल 19 के अंदर 6 फ्रीडम्स हैं, वो अपने आप ही सस्पेंड हो जाएंगी। बट आर्टिकल 359 बोलता है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो वो क्या कर सकता है? राइट टू मूव इन एनी कोर्ट का जो आर्टिकल आपका ये बोल सकते हैं, आर्टिकल 32 है जो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है, ठीक है। आर्टिकल 32 है जो मतलब जिसके बिना आप इन्फोर्स नहीं कर सकते फंडामेंटल। देखो फंडामेंटल राइट्स तो आपको दिए गए आर्टिकल क्या बोलते हैं 12 से आर्टिकल 35 तक, ठीक है, जो भी दिए गए ना, अब दिए गए तो है, बट आप अगर इन्फोर्सिबल नहीं कर सकते, आपको वायलेशन और आप अगर कोर्ट गए तो आप कोर्ट ही नहीं जा सकते। ये अगर आपके से राइट छीन लिया जाए कि सपोज करो आपके साथ कुछ हुआ है, आपके राइट का वायलेशन हुआ है, आपको कोर्ट जाना है, अगर आपका ये राइट ही वो कर दें, सस्पेंड कर दें कि आपको कोर्ट जाने का राइट ही नहीं है, तो ऑब्वियसली उन फंडामेंटल राइट्स का कोई मतलब नहीं रहेगा। सो कहने का मतलब यह है आर्टिकल 359 क्या बोलता है? प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो राइट टू मूव एट एनी कोर्ट का जो है इन्फोर्स वो है ना, वो सस्पेंड कर सकती है। तो आर्टिकल 359 क्या करता है? फंडामेंटल राइट को सस्पेंड नहीं करता है, इनको इन्फोर्समेंट को सस्पेंड करता है। सो दैट वाज लाइक इफेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हमने देखा, ठीक है। अब देखो ये हमारे किसी काम का नहीं है, हाँ ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं फिर से रेड उस पर करना चाहूंगा। प्रेसिडेंट के पास देखो आर्टिकल तो हमारे पास 6 क्या बोलते हैं, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं करंटली, राइट, को पता ही होगा ऑब्वियस है, अगर आप थोड़ा टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो तो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। उसमें दो जो राइट्स है ना वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्या मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है, वो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का है। और आर्टिकल आपको कुछ अरेस्ट के टाइम पे क्या देता है, जब आप किसी कस्टडी में होते हो या आपको कुछ सेंटेंस वगैरह दिया जाता है, पनिशमेंट किया जाता है आपका, तो उसमें आपके साथ कुछ राइट्स दिए गए इसमें, जैसे आपको क्या किया जा सकता है, आपको खुद के अगेंस्ट विटनेस नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है कि आपको उतनी सजा दी जाएगी जिस टाइम पे आपके प्रोविजन था, आपने क्राइम किया है किसी टाइम पे, क्राइम के उसी टाइम पे सेम सजा होगी
सपोज करो आपने क्राइम किसी और एक बंदे ने क्राइम किया है 2019 में, वो जो लॉ था उस टाइम पे जो 2019 में जो क्राइम किया उसके लिए जो सजा थी वो सजा उसे मिलेगी। अब सपोज 2024 में लॉ अमेंड कर दिया गया, उसकी जो पनिशमेंट है वो बढ़ा दी जाए, तो वो अप्लाई नहीं होगा। सिंपल है। तो ये कुछ प्रोविजंस है। सो सिंपल है। और आप उसको ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन अरेस्ट के भी बताना पड़ेगा सब कुछ। ये देखो प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है कि इन दो राइट्स को क्या कर सकते हैं, सस्पेंड करें। बस आर्टिकल 21 अगर आपसे छीन लिया जाए तो आपको कोई भी गोली मार सकता है, पुलिस कभी भी आपको गोली मार सकती है, उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी और ये आपको कितना भी टॉर्चर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आर्टिकल 20 अगर आपसे सस्पेंड कर दिया जाए तो these two articles are the heart of the constitution, as simple as that. Without them the constitution is meaningless. So आर्टिकल 20 and 21 को सस्पेंड नहीं कर सकते प्रेसिडेंट, आपको याद ये रखना है। अब आर्टिकल, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस मैं दिखा देता हूँ। आर्टिकल 358 और 359 में क्या डिफरेंस है। 350 देखो 358 है ना, अपने आप ही क्या होता है, बस आपको याद ये रखना है, ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता है। जबकि ऑटोमेटिकली 359 सस्पेंड हुई तो प्रेसिडेंट आपको नोटिफिकेशन जारी करेंगे उसमें। आर्टिकल 358 आर्टिकल जो 96 फ्रीडम से उसके उस पर लागू होता है, जबकि आर्टिकल 359 वो सारे फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 21 एंड 20 पे अप्लाई नहीं होता है। बस आपको याद रखना है। और आर्टिकल 358 कब अप्लाई होगा, जब एक्शन इमरजेंसी डिक्लेयर हो, मतलब when emergency declared on the ground of war or external aggression, not on the ground of armed rebellion. सिंपल है। जबकि आर्टिकल 359 है वो दोनों ग्राउंड्स पे आप डिक्लेयर कर सकते हो, एक्शन इमरजेंसी और इंटरनल इमरजेंसी पे। नेक्स्ट, देखो ये हमारे किसी काम का नहीं है, आई हैव जस्ट क्रॉस्ड देम, सो यू आल्सो डोंट नीड टू रेफर दिस। ये बस बता रखा है कि कौन सी इमरजेंसी कब डिक्लेयर हुई वगैरह वगैरह, ठीक है, आपको पता ही होगा वैसे तो, ठीक है। और आप अगर आपने वो पढ़ा होगा इंडिया सिंस पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, जो हमारा जो JS1 का सिलेबस है उसमें दे रखा है, उसमें अगर आप पढ़ोगे पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कब इमरजेंसी डिक्लेयर, कब वॉर पाकिस्तान चाइना के साथ हुआ वगैरह वगैरह। अब जो नेक्स्ट जो पार्ट है इस हमारे चैप्टर का, वो है प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। हाँ, एक चीज ये मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। देखो आर्टिकल 355 क्या बोलता है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेंटर टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन और इंटरनल डिस्बरेज, और टू इंश्योर दैट the government of every state is carried on the ground on the accordance with the provisions of the constitution। मतलब क्या है, देखो आर्टिकल 355 ओब्लाइज करता है सेंटर को कि सेंटर क्या करे, सारे स्टेट्स को एक्शन अग्रेशन से बचाए, और अगर वहां पे कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है इंटरनली तो उसको रोके, और सारे गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलाए उनको। ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी है सेंटर की, बस आपको याद ये रखना है यहाँ से। प्लस आर्टिकल 355 ये बोलता है, बट आर्टिकल 356 क्या बोलता है कि जब किसी स्टेट में क्या हो जाए, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चले, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि उस केस में प्रेसिडेंट रूल को डिक्लेयर कर दे। और प्रेसिडेंट रूल को क्या क्या नाम से जाना जाता है, स्टेट इमरजेंसी, क्वेश्चन इमरजेंसी, ये मैंने ऊपर बताई दी आपको। और वर्ड यूज नहीं हुआ इमरजेंसी कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए। तो प्रेसिडेंट रूल दो ग्राउंड्स पे लागू किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 356 में। ये बोला है कि दो ग्राउंड्स हैं जिन पे आप क्या कर सकते हो, इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल आप कर सकते हो डिक्लेयर। फर्स्ट ग्राउंड आर्टिकल 356 में दे रखा है, दूसरा ग्राउंड है आर्टिकल 365 में। तो 356 में क्या बोला है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर करनी जब कोई गवर्नमेंट ऑफ स्टेट क्या करे, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चले। मतलब कोई गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी ना, तो क्या करेगा, प्रेसिडेंट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 356 कि वो प्रेसिडेंट रूल
इम्पोज कर दें। नेक्स्ट जो ग्राउंड है वो है अंडर आर्टिकल 365 बोलता है कि जब सपोज करो सेंटर ने कोई इफेक्ट डायरेक्शन दिया स्टेट को, सपोज करो आपको किसी सेंटर ने कोई डायरेक्शन दिया स्टेट को और वो डायरेक्शन स्टेट ने नहीं माना है, तो देन इस सेंटर इज empowered और द प्रेसिडेंट इज empowered टू डिक्लेयर सच सिचुएशन इन द स्टेट की यहाँ पे नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं चलाया जा सकता, तो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। अब जैसे ये हो गया आपका इम्पोज कर दिया, उसके बाद जैसे हमने नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट अप्रूवल वगैरह होता है, उसका ड्यूरेशन क्या, कितने टाइम तक चलेगा। तो देखो ये प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो गया, उसके 2 महीने के बाद ही आपको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को क्या करना पड़ेगा, पास कराना पड़ेगा। अब आपने सपोज करो पास करवा दिया तो 6 महीने तक चलता है, मतलब 6 महीने के बाद फिर से आपको पास करवाना है और मैक्सिमम 3 साल तक आप इसको बढ़ा सकते हो। उसके बाद आपको करवाना पड़ेगा इलेक्शन, या उसको जो भी है, अगर उस स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड मतलब कंपनी डिसमिस कर दिया तो आपको इलेक्शन करवाने, अगर सस्पेंड ही किया बस तो अपने आप रिन्यू हो जाएंगे 3 साल के बाद। तो 3 साल मैक्सिमम है। जब नेशनल इमरजेंसी में हम देखेंगे, देखा था हमने कि उसको इंडिपेंडेंट पीरियड के लिए बढ़ा सकते हैं 6-6 महीने के बाद। ठीक है, इसमें यही देखना है बस। हाँ, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इसका इफेक्ट क्या होता है। ये तो वो किसी काम का नहीं है, दैट्स व्हाई आई जस्ट कट दिस डाउन। ओके, आप इसको मत ही रेफर करिएगा। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ये होता है कि प्रेसिडेंट जैसी पावर आपके प्रेसिडेंट साहब इम्पोज करेंगे ना, ये आपकी जो प्रेसिडेंट रूल है स्टेट में, किसी स्टेट में, तो उसका क्या होगा इफेक्ट कि वो स्टेट गवर्नमेंट के सारे फंक्शन अपने हाथों में ले लेंगे। क्या ले लेंगे, अपने हाथों में ले लेंगे, और अपने हाथों में एक्चुअली डायरेक्ट नहीं लेंगे, वो गवर्नर के थ्रू क्या करेंगे, स्टेट को रन करेंगे। बस आपको याद रखना है कि जो फंक्शन स्टेट गवर्नमेंट करती है वो गवर्नमेंट कौन करे, प्रेसिडेंट करेंगे। और कौन करेंगे मतलब इनडायरेक्टली करेंगे, डायरेक्टली तो गवर्नर करेंगे वहां के, मतलब द गवर्नर मतलब shall run the administration on behalf of president after the president rule is imposed in any state. This is something constitution has to say. नेक्स्ट जो है आपका, अब देखो स्टेट लेजिस्लेचर पहले तो थी, उसको आप क्या कर रहे हो, सस्पेंड कर रहे हो, इसको डिसमिस कर रहे हो या डिसोल्व कर रहे हो। तो अब जो स्टेट लेजिस्लेचर की पावर कौन वो करेगा, एंजॉय करेगा, वो करेगा आपका पार्लियामेंट एक्सरसाइज करेगी उसको। बस ये याद रखना है, मतलब जो पावर सीएम के पास थी ना पहले, वो पावर गवर्नर यूज करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, और जो पावर स्टेट लेजिस्लेचर की थी वो पावर एंजॉय करेंगे आपकी पार्लियामेंट। मतलब कोई भी लॉ बनाना हो ना किसी उस स्टेट पे, तो वो लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगी। बट यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट जैसे इम्पोज होता है ना, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर को क्या करते हैं, डिसमिस कर देते हैं स्टेट में। और पहले बता दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट कैरी द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो है नहीं। हाँ, अब इसीलिए इसको देखो क्योंकि कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट, कर रहे हैं उसको रन कर रहे हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, दैट्स व्हाई दिस इज पॉपुलरली नोन एज प्रेसिडेंट रूल। आर्टिकल 365 क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्टिकल 356 को बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। और अब मैंने पहले ही बता दिया कि प्रेसिडेंट के पास पावर या तो उसको स्टेट लेजिस्लेचर डिसॉल्व करे या सस्पेंड करे, उसके पास ये डिस्क्रिप्शन होता है। बट वन केस इज दैट इज परमानेंट, दैट इज की द dismiss of the council minister headed by prime minister, that will be the for sure। ये हमारे किसी काम का नहीं। हाँ, अगर आप देखो, अगर 1 मिनट कंपैरिजन करना है, 1 मिनट, अपन सीधा उसमें आएंगे। हाँ, तो एक बार देखो मैं आपको कंपैरिजन कर देता हूँ जल्दी जल्दी में, ताकि आपको है ना बस अच्छे से रिवाइज हो जाए एक बार। ठीक है, देखो ये हमने देखा कि 3 ग्राउंड इसके लिए, वॉर, एक्शन, अग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन, 3 ग्राउंड है। हमने देखा नेशनल इमरजेंसी का प्रेसिडेंट रूल कब, जब या तो गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग नहीं चले कॉन्स्टिट्यूशन के, या कोई स्टेट से सेंटर का डायरेक्शन नहीं माने, खत्म।
नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव और एक्सरसाइज लेसन किसके पास होती है? सेंटर के पास हो जाती है सारी पावर, और स्टेट में भी पावर बनी रहती है, कुछ कुछ कॉन्करेंट पावर बनी रहती है, मतलब स्टेट भी अपना काम कर सकते हैं, सेंटर भी कर सकती है, दोनों साथ साथ करते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, पार्लियामेंट सब कुछ बनाती है, लॉ बनाती है, गवर्नर सब कुछ अपना पावर एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नर चला रहा है, पार्लियामेंट पावरफुल, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट का कोई एक्जिस्टेंस ही नहीं रहता उस टाइम पे, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। अब पार्लियामेंट क्या कर सकती है यहाँ पे, जैसे नेशनल इमरजेंसी इन्फोर्सिबल है तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे सब्जेक्ट बना सकती है, किसी भी लॉ बना सकती है पूरे इंडिया के लिए। जबकि पार्लियामेंट जब प्रेजेंट रूल किसी रूल में प्रेजेंट रूल किसी स्टेट में होगा तो उसी में पार्लियामेंट रूल लॉ बना सकती है, ना कि दूसरे स्टेट के लिए। नेक्स्ट, इसके लिए कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं है, जैसे हमने बताया कि आपको 6 6 महीने के बाद अप्रूव करते जाना है, और आप अनडिफिनिटेड पीरियड के लिए आप इसको बढ़ा सकते हो। जबकि यहाँ पे मैक्सिमम 3 ईयर है, ठीक है, 3 साल तक इसको बढ़ा सकते हो। 6 6 महीने के बाद आपको इसको भी वेरीफाई करवाते जाना है, अप्रूवल करवाना है। अब इसमें सेंटर से रिलेशन पूरे चेंज हो जाते हैं, हमने देखा कि सारा सेंटर पावरफुल बन जाता है, जबकि यहाँ पे उस स्टेट का ही होता है, एक स्टेट का ही होता है, ओनली स्टेट अंडर द इमरजेंसी, दूसरे स्टेट के साथ सेम रिलेशन होते हैं। स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाना पड़ता है आपको, ये याद रखना है, ये डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कि पहले बताया था, मतलब ओरिजिनली तो सिंपल मेजोरिटी थी, बट जब 44th अमेंडमेंट आया तो उसको स्पेशल मेजोरिटी बना दिया गया। जबकि यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी से आपको पास करवाने हैं, बस, ज्यादा कुछ नहीं। फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करता है, जैसे हमने देखा कौन कौन से राइट्स को अफेक्ट करता है, आर्टिकल 19 और अदर फंडामेंटल राइट्स को भी। जबकि इसका कोई इफेक्ट नहीं है फंडामेंटल राइट्स पे स्टेट इमरजेंसी का। हाँ, लोकसभा के पास इसकी पावर होती है कि वो क्या करे, रेजोल्यूशन पास करके उसको रिवोक कर सकती है। बस इस यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास ही पावर होता है, इसके पास और किसी के पास पावर नहीं है। ये सिंपल एज दैट, ये हमने डिस्कस कर लिया। देखो, ये किसी काम करनी, दैट्स व्हाई आई जस्ट क्रॉस देम। अब हमारा जो लास्ट चैप्टर होने वाला, मतलब लास्ट पार्ट है, दैट इज द फाइनेंशियल इमरजेंसी, दैट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। और बहुत छोटा चैप्टर, मतलब बहुत ही कम टाइम लगेगा अब तो। देखो, फाइनेंशियल इमरजेंसी है ना, सिंपल ये रही, ठीक है। ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन क्या, आर्टिकल 360 क्या बोलता है, प्रेसिडेंट को फिर से पावर देता है। मतलब इमरजेंसी तीनों कौन डिक्लेयर करेगा, सबसे पहले प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे, मतलब एक चीज कॉमन है तीनों में, ठीक है। कब डिक्लेयर करेंगे, जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मैंने ऊपर ही बताया था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रेडिट ऑफ इंडिया का इंडेंजर्ड हो जाए, ये किसी टेरिटरी का इंडिया के, जब उनको थ्रेटन हो जाए, तब फाइनेंशियल इमरजेंसी को इम्पोज किया जा सकता है प्रेसिडेंट के हिसाब के द्वारा। अब पार्लियामेंट अप्रूवल क्या, देखो वही है, 2 2 महीने में, मतलब तीनों इमरजेंसी। देखो, वो 2 इमरजेंसी को आप क्या किया, आपको 1 1 महीने में करना था, यहाँ पे 2 महीने में करना है, बस ये याद रखना है। नेशनल इमरजेंसी पहले कितनी थी, 2 महीने में थी, अभी 1 महीने में हो गया है, ठीक है। फाइनल इमरजेंसी को 2 महीने में आपको पास करवाने पार्लियामेंट से, दोनों हाउस से पार्लियामेंट के, ठीक है। इतना तो आपको पता हो ही, कर जाओ। अब एक बार आपने अप्रूव करवा दिया पार्लियामेंट से, आपने अप्रूव करवा लिया, ठीक है, उस इमरजेंसी को, मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी को, फिर आपके पास है ना, वो मैक्सिमम पीरियड उसका कुछ है ही नहीं, मतलब उसको इंडिपेंडेंट पीरियड के लिए चला जा सकता है, और मतलब बार बार उसको अप्रूव करने की जरूरत नहीं। जैसे देखो, 6 6 महीने के बाद नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल को अप्रूव करना पड़ता है, वैसे यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं, एक बार कर लिया तो आप उसको चला सकते हो लेवल, मतलब कंटिन्यूसली। नेक्स्ट, इफेक्ट क्या इसके, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ना, फाइनेंशियल फील्ड में एक्चुअली सेंटर काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है, हमारे लिए ये ध्यान में रखना है, ठीक है। फाइनेंशियल फील्ड में मतलब सेंटर कोई भी आपको डायरेक्शन दे सकती है किसी भी स्टेट को, सिंपल है। नेक्स्ट है कि सैलरी है ना, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है सारे, मतलब एनी क्लास, मतलब ऑल क्लासेस, मतलब फर्स्ट ग्रेड, मतलब ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, सबकी जो भी गवर्नमेंट के अंदर सर्विस कर रहे हैं, उन सबकी सैलरी को रिड्यूस किया जा सकता है, रिडक्स पूरा कंप्लीट कैंसिल कर सकते हैं अभी में। नेक्स्ट जो पावर है, वो क्या कर सकते हैं, जो गवर्नेंस फाइनेंशियल बिल वगैरह होते हैं, मनी बिल, वो क्या करें स्टेट्स के, वो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए भेज दे। सपोज यूपी में कोई वो मनी बिल आया है, वहां पे बजट चल रहा है, तो उसके लिए मनी बिल आया है, तो गवर्नर वहां की अगर फाइनेंस इमरजेंसी चल रही है, तो गवर्नर वो बिल को असेंट देने से पहले प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए भेजेंगे, तो प्रेसिडेंट उसके बाद डिसीजन लेंगे, दैट इज पावर। और
वही है कि जब फाइनेंशियल इमरजेंसी चल रही होती है तो सेंटर सब कुछ पावरफुल बन जाता है फाइनेंशियल मैटर में, वही मैंने ऊपर बताया है। ये भी मैंने ऊपर बता दिया है कि आज तक फॉर्चुनेटली वी हैड नो फाइनेंशियल इमरजेंसी टिल नाउ। देयर वर फाइनेंशियल क्राइसिस इन 1991 व्हेन द आपके वीपी सिंह क्या बोलते हैं नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी, और हमारे जो ऑनरेबल डॉक्टर मनमोहन सिंह वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, एंड ही हैंडल्ड द सिचुएशन वेरी स्मूथली, and he should always I have very much respect for him, that's why, and he was a very great PM as well for the 2 term. Next जो हमारा क्रिटिसिज्म, हाँ अब हमने देख लिया कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, तीनों इमरजेंसी को देख लिया। अब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में ना इन इमरजेंसी प्रोविजंस को लेकर काफी ज्यादा डिबेट हुई, मैंने पहले ही बताया है। कुछ मेंबर्स ने तो बोला कि क्यों लाओ इसको, क्या जरूरत है इसकी, ठीक है, अमेरिका वगैरह में तो ऐसे कुछ है नहीं सिस्टम इमरजेंसी प्रोविजंस का। तो इसका क्रिटिसिज्म क्या था वो बता देता हूँ, ठीक है, क्यों किया क्रिटिसिज्म, से ग्राउंड कौन से देखो। सबसे पहले बोल रहा है मेंबर्स ने बोला कि जो फेडरल कैरेक्टर है ना, फेडरल कैरेक्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या बन जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब सेंट्रल गवर्नमेंट सारी पावरफुल बन रही है। मैंने पहले ही बताया था जैसे इमरजेंसी प्रोविजंस मतलब स्पेशली इमरजेंसी जो आपकी नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वहां पे नेशनल क्या होता है, यूनिटरी फेडरल सिस्टम यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम थोड़ी चाहेंगे, हम ऑलवेज क्या करेंगे, फेडरल सिस्टम का जो वो मेंटेन रहे, हम कभी नहीं चाहेंगे ना कि फेडरल सिस्टम यूनिटरी बन जाए। तो ये फर्स्ट क्रिटिसिज्म है, वैलिड क्रिटिसिज्म ये भी। सेकंड है कि जो पावर्स आपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिए है, एग्जीक्यूटिव पावर हो चाहे फाइनेंशियल पावर, जो लेजिस्लेटिव पावर जो हमने सेंट्रल स्टेट इलेक्शंस में डिस्कस की, तीनों पावर्स को अलग अलग तरीके से, वो सारी पावर्स आप जो डिवाइड थी यूनिट्स और आपके स्टेट्स में, मतलब स्टेट्स में यूनियन में डिवाइड थी, अब सारे पावर्स किस में आ रही है, हाथ में, यूनियन एग्जीक्यूटिव के हाथ में आ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ गई है। वो भी तो अच्छी बात नहीं है ना, डिवीजन ऑफ पावर, इट इज अगेंस्ट द डिवीजन ऑफ पावर, राइट। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट के डिक्टेटर बनने के चांसेस है। प्रेसिडेंट क्या बन सकता है, एक्चुअली प्रेसिडेंट डिक्टेटर नहीं बनेगा, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट को तो एडवाइस माननी पड़ती है अंडर आर्टिकल 75, ही इज ऑब्लाइज्ड टू abide by the advice of the council minister headed by prime minister। बट हाँ लाइक इनडायरेक्टली बोल सकते हैं प्रेसिडेंट भी डिक्टेटर बन जाएंगे, मतलब पीएम बन सकते हैं डिक्टेटर, एज वाज सीन इन द केस ऑफ इंदिरा गांधी, ठीक है, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी 1975 से लेकर 1977 में जो थी। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में स्टेट की चली जाएगी बिल्कुल ही, मतलब जो भी फाइनेंस ऑलरेडी स्टेट्स बहुत डिपेंडेंट है आपके सेंटर पे फाइनेंस के लिए, और ये जब इन्फोर्सिबल होगी तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी फाइनेंस के फील्ड में। फंडामेंटल राइट्स के मतलब नाम के रह जाएंगे, कोई मीनिंगलेस हो जाएंगे, उनका कोई इन्फोर्सिबल तो होगा नहीं, दैट इज समथिंग। तो दिस इज समथिंग व्हाट यू इट्स मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट हाँ फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव तो आप यहाँ पे क्या करो, मेंस लिख लिया करो, जैसे मतलब क्योंकि आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मेंस में आपके पास इतना टाइम होगा नहीं ना कि भाई आपको क्या करना है, पता करें कौन सा मेंस के लिए, तो यहाँ पे क्या करो, पहले आप मेंस वगैरह लिख लिया करो एम, ठीक है, और बाकी अपने आप ही पढ़ना सारे पढ़ने ही आपको। तो ये कुछ आप आई थिंक ये हमने कर लिया, और ये कुछ ये जो आर्टिकल्स है, सो गाइस हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया क्रिटिसिज्म के सबका। सो आई होप आई एम वेरी श्योर दिस lecture was helpful for you, and already the audience is really enjoying our lectures, and I am very sure things will going to be smooth. And thank you guys for your time. Take care. Bye bye.